We would begin with the guidelines for today's circle. And healing circles are built on the foundation of kindness and respect. We listen to each other with compassion and curiosity. We honor each other's unique ways of healing and don't presume to advise or fix or try to save each other. We hold all the stories shared in the circle within us, and we trust each one of us has guidance beneath within us, and we rely on the power of silence to access it. So, thank you so much, everyone, for joining in today's Healing Circle Talks. And we just had a session in the morning today around the volunteerism and how can we all together join hands and create that larger impact that we all want to create. So would everybody, we will keep all of you informed on the updates, and also those who were not able to attend due to different in timings, like maybe you wanted to attend but couldn't. So we will keep you all of you updated on the same. Today we have a very special guest with us, Dr. Kiran. And Dr. Kiran Nagpal, she is a breast cancer winner, and she was diagnosed with breast cancer in 2015. And she survived cancer with the support of her family and friends. She says without their support, it would not have been near to even possible to go through the entire emotional turmoil during the chemotherapy. Her perspective towards life changed after surviving cancer, and she found the importance of life. She realized that life is not about length, but it is the depth that matters in life. Very true, Dr. Kiran, and this has been something that I've been deeply integrating in my own thought process as well. When I lost Nitesh to cancer, that it's not the quantity, rather the quality of life that matters. And the thing that mujhe itna jo, whenever I look back and think about it, the sense of satisfaction that it gives me is because of the quality of life that he had in those last moments, is the joy that he carried. Even in that time he was joyful, wanted to give back, and the complete transformation. So you rightly said that it's the quality that matters. So thank you so much, and welcome to Healing Circle Talk, Dr. Kiran. Would love to hear. Today morning we introduced you. You mentioned about you're from Indore, and you also part of Sangini, which is a wonderful motivational group for cancer patients based out of Indore. So please, would request you to share your journey. Thank you. Yeah. First of all, thank you so much, Dimple and Team Zenonco, for giving me this opportunity. I hope कि मैं इस मिशन से जो जुड़े लोग हैं उनको इंस्पायर कर पाऊँ, और जो भी हेल्प मेरे से हो पाए मैं जरूर दूंगी आपको. So my journey started in 2015. I was diagnosed breast cancer in 2015. It was a 3rd stage, and I just felt a mild pain in my left breast. One day I just felt mild pain. Then another day also, for a moment or two, again I felt pain. So 3-4 days it was and breast. I mean, examined here, and I found some lump was there. I felt like some lump is there. So as I am with, मैंने मुझे लगा कि है कुछ lump है. Then second day, little mild pain in my left breast. Then sonography hui and doctor suggested me. She directly told me to go to cancer hospital. Directly she told me to go to cancer hospital. So I was shocked कि एकदम से without any findings, how can she? So then we went for, and I was alone there. I went alone for the examination also. Then we went for the second option. हम लोग दूसरा opinion लेने गए. We went Bombay hospital. Then we showed there. So doctor told me for this FNAC. कोई doubt था कि without FNAC how can she confirms that it is malignant? Because sometimes lumps are benign also. Maximum time it is benign. So then FNAC हुआ, and after one day confirm हुआ कि it was cancer. So same day we took decision and we went to Delhi. Delhi में हमारे सभी relatives हैं, तो so we went there. Max hospital में फिर after 3-4 days
सर्जरी हुई। और उस समय पे फिर बहुत डिलेमा था कि वेदर टू रिमूव होल ब्रेस्ट, वेदर टू रिमूव ओनली लंप, और ये सब रहा 2-3 दिन तक, MRIs एंड एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन। देन फाइनली माय लेफ्ट ब्रेस्ट वाज रिमूव्ड, एंड आफ्टर दैट सर्जरी तक भी आई डिड नॉट हैव एनी, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, वाज ऑल ओके, बिकॉज उसके पहले 3-4 बार सर्जरी हो चुकी है, तो वाज लाइक सर्जरी में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। आफ्टर दैट आई हैड 4 कीमोस के टाइम पे भी फिर वही डिलेमा था, somebody was saying 4, 6, 8, whether with one drug or combination of drugs, तो like that फिर वो सब होता रहा। तो देन 4 कीमोस मेरे डिसाइड हुए और कीमो स्टार्ट हुए। आफ्टर दैट रेडिएशंस भी हुए 33। पर जो कीमो में बहुत प्रॉब्लम हुई, मतलब सर्जरी में भी नहीं हुई, रेडिएशन में भी इतना कुछ नहीं हुआ, लेकिन कीमो के बाद पूरा जैसे हिल जाते हैं ना, वो हुआ। मतलब इट वाज मेंटल, फिजिकल, एवरीथिंग, क्योंकि उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं कीमो के, उसकी वजह से बहुत डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं। एवरी कीमो आई हैड सम डिफरेंट सिम्टम्स, कभी मुंह में छाले हो जाना, कभी लूज मोशंस हो जाना, कभी वॉमिटिंग्स होना, लाइक दैट। तो आई हैड मेनी मोर सिम्टम्स डिफरेंट, हर कीमो में अलग अलग रहे। कीमो के बाद माय हस्बैंड, जैसे ही मेरा कीमो खत्म हुआ तो माय हस्बैंड टुक मी टू कश्मीर, हेवन ऑन अर्थ। इट वाज रियली हेवन ऑन अर्थ। सो इतने टफ टाइम से निकली थी, तो मुझे फिर जैसे ही कीमो खत्म हुआ, रेडिएशन में थोड़ा गैप था, तो विद द परमिशन ऑफ डॉक्टर ही टुक मी टू कश्मीर। मेरी बहुत टाइम से इच्छा थी, तो उन्होंने वहीं का प्लान किया एंड वी वेंट देयर। तो फिर काफी, मतलब उस चीज को मैं भूली जो मैं इतनी परेशान हुई थी, तो वहां जाने से मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कहने का मतलब ये कि सपोर्ट कैसे शुरू होता है, तो वहां से बिना बोले वाला सपोर्ट शुरू होता है। तो फैमिली, अब जैसे जब खा नहीं पाते थे, तो माय ब्रदर यूज्ड टू मेक सम शेक्स फॉर मी, कि अभी मिर्ची लग रहा है तो मीठा कुछ बना दे, ये बना दे। तो एवरीवन वाज आफ्टर मी कि ऐसा कर दें तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर दें तो ऐसा हो जाएगा, घबराहट हो रही है और अच्छा नहीं लग रहा है, तो गाड़ी में ऐसे राउंड लगाने ले गए। तो डेली आई यूज्ड टू गो, गाड़ी में बिठाते थे, उसमें भी मुझे अच्छा नहीं लगता था, पर दे यूज्ड टू टेक मी आउट, पूरा राउंड लगवा के आ गए। अच्छा आज शॉपिंग चलते हैं, आज ऐसा अननेसेसरी आई यूज्ड टू डू शॉपिंग, मतलब मुझे लेके जाते थे कि ये करो ये करो। तो इट वाज द सपोर्ट ऑफ फैमिली, पूरे टाइम उसको एक निगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करना, बाहर लाना उस चीज से कि आप ऐसा करो ऐसा करो, अच्छा आज मंदिर चलते हैं, आज ये करते हैं, आज करते हैं। मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता था, कुछ भी, जो सब कुछ पसंद था ना, वो सब कुछ खराब लगने लगा था। तो ना पर्सन्स पसंद आते थे, ना कोई जगह पसंद आती थी, ना खाना पसंद आता था। तो कीमो वाज टेरिबल एक्सपीरियंस फॉर मी। तो उसमें सब पूरी फैमिली ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मेरा, और उसी चीज से फिर मैं बाहर निकली। फिर रेडिएशन हुआ एंड एवरीथिंग वाज फाइन, मतलब विद इन 6-7 मंथ्स में सब कुछ। जब हम सोचते हैं कि, कहने का मतलब, जब उस समय ऐसा लगता है कि सब खत्म है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस यदि रखें तो उसमें से 1% भी नहीं रहता। तो 6 to 7 मंथ्स के बाद में एवरीथिंग वेंट, मतलब कुछ भी नहीं था, सब नॉर्मल था। और ये बाल बाल तो सब बहुत छोटी मोटी चीज है। तो विग भी बनवाई, बहुत अच्छे से स्टाइलिश लुक भी रहा कुछ टाइम के लिए। तो आई एंजॉयड दैट विग ऑल्सो। पूरे बाल चले गए थे, फिर विग विग लगा के बढ़िया सब दूर घूमना, और बिल्कुल एकदम लुक ही चेंज हो गया था। तो वो टाइम भी एंजॉय किया। आफ्टर दैट इसके बाद में फिर मैं, मुझे लिम्फेडिमा हुआ। तो जैसे डॉक्टर के पास विजिट के लिए जाती थी, तो लिम्फेडिमा के लिए मुझे डॉक्टर तारण ने मुझे ही सजेस्टेड मी, उन्होंने मुझे प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के दिया अनुराधा सक्सेना, और नंबर दिया, उन्होंने मुझे फोन नंबर दिया। तो आई थॉट कि ये कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, मतलब उन्होंने बोला बस आप इनसे मिल लो। तो मुझे लगा शायद कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, लिम्फेडिमा के लिए बता रहे हैं मुझे। तो मैंने फिर उनसे, दीदी से बात करी, फोन किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे आप इतनी बजे आ जाओ, ठीक है। तो मैं गई, उनसे मिली, तो फिर मुझे पता लगा कि उन्होंने बोला कि अभी कल ही वर्कशॉप होने वाली है लिम्फेडेमा की, तो आप वहां पे आ जाओ। तो आई सेड ओके। फिर दूसरे दिन मैंने सोचा यार, इन्होंने तो कुछ बताया ही नहीं मुझे, अब मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, सोच रही थी कि जाना चाहिए या नहीं। फिर एक
आधे रास्ते पहुंचने के बाद भी लग रहा था कि नहीं, नहीं जाती। फिर लौट के वापस आके घर पहुंच के फिर वापस गई कि नहीं जाती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। तो ऐसा रहा। वेंट देयर, वर्कशॉप में गई और वहां मैंने अटेंड किया। जब मैंने वहां देखा कि सभी मेरे जैसे लोग हैं, बिकॉज आई डू नॉट हैव ए सिंगल परसेंट आइडिया कि ऐसा कुछ सोसाइटी भी है जो कैंसर पेशेंट्स के लिए पूरा केयर करती है, सब देखते हैं। तो जब मैं वहां गई तो मैंने देखा सभी लोग वैसे ही थे, सब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, बट दे ऑल वर लाइक स्माइल थी, हंस रहे हैं, सब मिल रहे हैं, खूब मस्ती मजा कर रहे हैं। तो वर्कशॉप हुई और सब खूब अच्छे से मिल रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो मेरा एकदम चेंज आया मेरे में, सिर्फ एक वो वर्कशॉप अटेंड कर। Okay, I think the video got stuck. करने से मुझे, सॉरी सॉरी, No problem. कॉल वाज देयर। सो वहां से मेरा पर्सपेक्टिव सारा चेंज हुआ। उसके बाद फिर जैसे और नेक्स्ट वर्कशॉप के लिए, नेक्स्ट चीजों के लिए मिलने वहां पे उन्होंने लिम्फेडिमा का मेरे को बताया। आई टू बैंडेज वहां से लिया, मैंने बैंडेजिंग सीखी और वो सब मैंने आकर किया, मुझे काफी रिलीफ मिला। फिर आई स्टार्टेड गोइंग देयर, मतलब फिर उसमें मैं ग्रुप में जुड़ी, फिर जाने लगी। और फिर उसी से हमारा संगीनी से एक वॉलंटियर्स का ग्रुप बना, जिसमें हम लोग फिर सब लोग मिलके कुछ ना कुछ, जैसे वर्ल्ड कैंसर डे है, मैराथन है, फिर कुछ ना कुछ हम लोग ऐसे एक्टिविटीज में हम लोग जुड़े रहे। तो सबसे मिलने के बाद मतलब, तो मैं उस दिन को, मुझे फिर ऐसा लगा कि ये सब कुछ शायद अच्छे के लिए हुआ था। मैं इन लोगों सबसे मिली, अनुराधा दीदी से मिली, और मेरा सब पूरा पर्सपेक्टिव लाइफ के लिए चेंज हो गया। मतलब वो सबको पुश करती हैं कि क्यों क्यों डांस नहीं करोगे आप, क्यों आप ऐसा क्यों नहीं करोगे, आप ऐसा क्यों नहीं करोगे। तो शी पुश एवरीबडी कि आप करो करो करो। तो उससे इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, इतना मतलब कि सब भूल जाते हैं हम। तो वो ऐसा ग्रुप मुझे मिला, उसमें ज्वाइन होने के बाद मुझे काफी चीजें ऐसी सब एक्टिविटीज में हम लोग, अब क्या है कि अब लगता ही नहीं है कि कुछ ऐसी कुछ प्रॉब्लम है। जब भी मिलते हैं सब, तो बिल्कुल लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं है, ये कितनी तकलीफ में है लोग। तो ये सब देख के और फिर अब समझ में आया कि जब अपने को होता है, अपने पास कुछ नहीं था, तो किसी जिसको नहीं पता हो कि ऐसी कुछ चीजें भी हैं जिनसे हम जुड़ के अपना पूरा लाइफ का वो चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं बहुत मतलब आना चाहती हूँ कि कुछ करना चाहती हूँ लोगों के लिए, कि उनकी किसी भी वे में मैं हेल्प करूँ। मेडिकल फील्ड से हूँ, कुछ सजेशंस चाहिए, और उसके अलावा कुछ कुछ भी वो है तो मैं जरूर हेल्प करना चाहती हूँ इसके लिए। तो मेरा बहुत बड़ा थैंक यू है संगीनी टीम को। एक इंद्रधनुष टीम है हमारी जो म्यूजिक के द्वारा सबको ठीक करती है, उसमें भी मैं जुड़ी हुई हूँ। वो भी कैंसर केयर सोसाइटी है वो, उसमें भी मैं जाती हूँ, इसमें भी तो। और वो भी मैं संगीनी के थ्रू ही वहां भी गई हूँ। तो कुछ हमारे कॉमन मेंबर्स भी हैं दोनों सोसाइटीज में, कुछ गुड कॉज के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। जो कभी नहीं किया था, रैंप वॉक किया, और पता क्या क्या नहीं किया संगीनी में। तो You हैट्स wonderful. ऑफ, यस। बहुत अच्छा लगा सुन के कि ना एज अ कम्युनिटी when we all stand together for each other, the kind of difference it can create, and I can यस see it जब आप बोल रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो वो दिख रहा है। और in fact when we spoke to many other people today in one morning conversation, it was like we all are connecting first time, but then we all have gone through this journey maybe 5 years back, 10 years back, 20 years back, that it already feels like okay we all are connected, बस अब हम दूसरे को कैसे हेल्प करें इसके अंदर। और जैसे आपने एंड दिस वर्ड, यस इट इज इट इज स्कैरी जब पहली बार पता चलता है, बट ड्यूरिंग दैट टाइम जो आपको उस वक्त जो स्टार्टिंग में गाइडेंस मिलती है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वही आपका रास्ता भी डिसाइड करती है। So good that you had that support with you, who guided you, and you also come from the healthcare field, तो आपको उसका already understanding काफी अच्छा था। So right, so Dr. Kiran, सबसे पहले क्या, या आई वांट टू से कि एक्सेप्ट, सबसे पहले एक्सेप्ट। जैसे जब पता लगा था ना, तो मैं मतलब मुझे ऐसा कोई बहुत शॉक नहीं लगा था। शॉक मीन्स मतलब एक्सेप्ट कि अब
मतलब हो गया, अब क्या है, व्हाट नेक्स्ट, है ना, मतलब उसमें वही स्टॉप नहीं होना है। तो एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है लाइफ में। सबसे पहले आप एक्सेप्ट करोगे ना, तो आपका फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट वही है, एक्सेप्ट इट दैट इट इज एंड व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट। So that is very important, and stay positive, and God helps those who helps themselves. So आप अपना एक कदम बढ़ाओगे तो आपके लिए 10 रास्ते खुलेंगे। तो you have to be like positive, राइट। और ट्रीटमेंट भी आपको तभी फायदा करेगा जब आप पॉजिटिव उसको आप अच्छे से लोगे, तो वो आपको असर भी करेगा। तो डॉक्टर किरण, आपको भी ऐसे कई बार मोमेंट्स आए होंगे जहाँ पे आप पॉजिटिव नहीं थे, या फिर आपको डर लगा, या फिर आपको लगा कि मेरे को कैंसर हो गया, इट्स अ बिग थिंग, तो आपने वो कोप अप कैसे किया? हाँ देखिए, मैं वही बताऊं कि जैसे डायग्नोज हुआ, मुझे कुछ भी ऐसा कुछ नहीं लगा कि हाँ मतलब वो हो गया है। मुझे सिर्फ सर्जरी से भी बिल्कुल डर नहीं लगा। मुझे सबसे ज्यादा कीमो से, जब कीमो के टाइम पे मुझे थोड़ा डिप्रेशन आया, मुझे लगा कि मुझे क्यों हुआ है ऐसा सब। मतलब मुझे, जैसे मैं बाहर निकलती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि सब अपने रूटीन पे जा रहे हैं, मैं यहीं पे यहीं रुकी हूँ, ऐसा क्यों है। मतलब उस समय कीमो के टाइम पे मुझे लगता था। और फिर भी मैंने कीमो में, जैसे क्या होता है स्टार्टिंग में, जब कीमो का फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट से 10th डे तक बहुत तकलीफ होती थी, और 11th डे से ऐसा होता था कि जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं है, इतना नॉर्मल, एकदम से नॉर्मल। एंड आई यूज्ड टू गो, अपने वर्क प्लेस पे जाती थी मैं 11th डे से, और 20वें दिन तक जाती थी, 21वें दिन फिर कीमो होती थी, फिर 10 दिन के लिए रुक जाती थी, लाइक दैट। और रेडिएशन के साथ में भी मैं अपना वर्क प्लेस पे गई हूँ पूरा। रेडिएशन में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, सर्जरी तक तब तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। सिर्फ कीमो से मुझे, जो सेकंड और थर्ड कीमो में मुझे मतलब बेहद तकलीफ हुई है। पूरा मेंटल लेवल एकदम हिल गया था। और आपने उस मतलब सस्पिशियस, लाइक पूरा माइंड ऐसा सस्पिशियस था कि इन्होंने मुझे इसमें कुछ मिला के दिया है, ऐसा, लाइक दैट आई यूज्ड टू हैव। ऐसा मतलब इवन माय मदर used to bring some snacks for me ना, I used to throw like this कि नहीं आपने कुछ इसमें मिलाया है, आपने मिर्ची डाल के दी इसमें, जानबूझ के मना किया इसलिए आपने डाल। I used to speak like this। और मुझे बाद में इतना खराब हुआ जब मुझे रियलाइज हुआ, और उन्होंने कभी इतना सा भी शो नहीं किया कि ऐसा कुछ हुआ। राइट। सो वेरी सस्पिशियस माइंड इट वाज। 2-3 महीने तो बहुत सस्पिशन से भरा हुआ था कि ऐसा कोई आ रहा है मुझे मारने, ऐसा हो रहा है, लाइक दैट। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा, पर ऑटोमेटिकली उससे फिर मैं बाद में बाहर निकली। और मैंने बताया आपको कि पूरा फैमिली का जो सपोर्ट था, मेरे ब्रदर म्यूजिक लगाते थे, कुछ कहीं कहीं घुमाने ले जाते थे, मेरे हस्बैंड शाम को ऑफिस से आके मेरे को रोज ड्राइव पे लेके जाते थे। एक बार होया तो बोले अब ब्रदर के साथ हो के अब मेरे साथ चलो। तो ऐसे करके इन लोगों ने खूब मुझे बहुत ज्यादा मतलब झेला समझो। मतलब मुझे बहुत सरप्राइज लगता है कि कैसे मैंने इतना मिसबिहेव भी किया राइट। कुछ टाइम। तो अच्छा, आपने बताया आपका फैमिली सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। या वेरी ट्रू। राइट। एंड डॉक्टर किरण, आपने बताया योर मेडिकल ट्रीटमेंट, कैन यू प्लीज वॉक अस थ्रू दैट कि कौन कौन सा आपका मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ था? कई बार पेशेंट से क्वेश्चन पूछते हैं कि उन्होंने जब सर्वाइव किया तो उनका मेडिकल ट्रीटमेंट एग्जैक्टली क्या था, आप उसके बारे में बताएंगे? मतलब कीमो के इसमें बता रहे हैं? हाँ, जैसे आपका सर्जरी हुआ था तो कौन से टाइप का सर्जरी था, कीमोथेरेपी कौन सा वाला कीमोथेरेपी लिया था? सर्जरी मेरा एमआरएम हुआ था, होल ब्रेस्ट रिमूव किया था मेरा। और उस समय पे मुझे गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम भी शायद उस समय कुछ निकला था, पॉलिप वगैरह, तो गॉल ब्लैडर भी रिमूव हुआ था साथ में। तो 2 सर्जरीज हुई थी मेरी। और आप सर्जरी में मुझे कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। हाँ मुझे वो जरूर ये बोलते हैं ड्रेन लगा था 15 डेज के लिए। तो सर्जरी में उसके साथ में ड्रेन था मेरा, तो 15 डेज बाद वो ड्रेन रिमूव हुआ था, और उसके आफ्टर 15 डेज कीमो स्टार्ट हो गई थी। तो 4 कीमोज हुई मेरी एंड 33 रेडिएशन हुए थे। और उसके बाद अभी मेरा एक ओरल कीमो चल रहा है, 20 मिलीग्राम का टेमॉक्सिफेन टैबलेट आई एम टेकिंग। थोड़ा वेट गेन और वो सब हुआ है उससे। और फिर जो बाद में भर भर के खाए हैं कीमो के बाद। और लिम्फेडेमा मैनेजमेंट के लिए आपने क्या किया था? उसके लिए बैंडेजिंग से ही मुझे आराम मिला है। बैंडेजिंग किया,
वो मैंने वहां पे 2 बार 3 बार जाके सीखा। तो बैंडेजिंग से काफी आराम मुझे मिला, प्लस एक्सरसाइज जो पूरी वो 7-8 एक्सरसाइज बताते हैं ना, उससे बहुत आराम मिला मुझे पूरी। और हाँ, प्लस एक पॉइंट और मैं जोड़ना चाहूंगी कि अपने आप की अवेयरनेस नहीं है कि जैसे सर्जरी होती है तो तुरंत बाद हमें फिजियोथेरेपी की बहुत जरूरत पड़ती है, पर ड्यू टू लैक ऑफ दिस अवेयरनेस यहाँ पे लोग करते नहीं है कि ऐसा हो जाएगा, डर लगता है। तो मुझे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वहां पे दिल्ली में फिजियो करवाया था उन्होंने, तो इसलिए पूरा मूवमेंट था हाथ में। अदरवाइज ये पूरा ऐसा जाता नहीं है ऊपर हाथ, जिस साइड की आपकी सर्जरी होती है अफेक्टेड एरिया। सो फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वहां से आने के बाद मैंने पूरा 2 मंथ्स तक फिजियोथेरेपिस्ट यूज टू कम टू मी, और वो मुझे दोनों टाइम करवाती थी पूरा एक्सरसाइज। तो पूरा उन्होंने 200 ml 500 ml 1 लीटर की बॉटल ले लेके पूरा सब एक्सरसाइजेस करवाई है। तो इट ऑल्सो प्लेड अ वेरी बिग रोल इन माई ट्रीटमेंट ऑफ लिम्फेडिमा। Okay, got it. What is the one thing that you are most grateful of? God is great. So he is everywhere in the form of maybe Anuradha Didi, maybe my mom, my brother, my husband, my sisters, and everyone, family. Yeah. So he is everywhere in the form of different faces. Thank you. Beautiful. Yes, Yeah. God is great. Okay, and okay, any story, any moment that really, I know people's love and support touched your heart, but any other story that you would want to share, maybe from hospital, maybe from your community, maybe from family, that you always remember in this journey? Yeah, actually, I suffered with very royal diseases. I mean to say, मुझे 2009 में जब सबसे पहले स्वाइन फ्लू आया था ना इंडिया में, तो उस फर्स्ट ईयर पे मुझे स्वाइन फ्लू हुआ था, एंड आई वाज ऑन वेंटिलेशन फॉर 9 days. सो उस समय बिल्कुल था कि अब नाउ अब कुछ भी बोल नहीं सकते हैं कि शी विल लिव और नॉट, लाइक दैट। तो वो मेरी 2009 में मुझे हुआ था स्वाइन फ्लू, और 9 days तक वेंटिलेशन पे थी, बिल्कुल ऑक्सीजन लेवल एकदम लो हो गया था। और 3 to 4 टाइम से एबीपी वाला जो हमारा ये ब्लड टेस्ट होता है, जो पूरा आर्टरी से ब्लड लेके, इट इज टू पेनफुल। वो 3 to 4 टाइम्स डेली होता था मेरा वो वाला टेस्ट, ऑक्सीजन लेवल्स देखने के लिए। तो उससे मैं बहुत मुश्किल से निकली हूँ। 6-7 months पूरा बेड रेस्ट था, बाहर नहीं, कुछ नहीं। और थोड़ा सा मेरा उसकी वजह से जो मेरी फील्ड है उसमें भी मेरे को डिस्टर्बेंस आया काफी। आई यूज टू वर्क, इसके बाद जैसे ही मैंने हॉस्पिटल ज्वाइन किया, तो आई यूज टू असिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट एज असिस्टेंट सर्जन आई वाज वर्किंग। तो उसके बाद में मुझे जब हॉस्पिटल फिर से ज्वाइन किया, तो आफ्टर एवरी 1 or 2 months मुझे प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मेरा इम्यूनिटी इतनी ज्यादा लो हो गई थी कि बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होना, जल्दी बीमार पड़ना, ये सब बहुत जल्दी जल्दी होता था मुझे। तो उसकी वजह से फिर मुझे थोड़ा सा 2-3 साल जैसे जैसे क्लिनिक वगैरह सब मुझे फिर वाइंड अप करना पड़ा, बहुत प्रॉब्लम होने लगा था। फिर थोड़ा टाइम जो रहता है कि इतने टाइम से वर्किंग है और आप फ्री रहते हैं, तो फिर वही थोड़ा सा खाली दिमाग शैतान का बोलते हैं ना, तो फिर वही दिमाग में कुछ 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 ऐसा नेगेटिव थॉट्स और ये सब आने लगे थे। देन आई स्टार्टेड, मेरे ब्रदर का जो है पूरा एजुकेशन का बिजनेस है, मतलब उनके स्कूल्स हैं। तो ही सेट कि चलो आप थोड़े दिन स्कूल चलो, अच्छा लगेगा। तो मैं स्कूल जाने लगी। तो फिर वहां पे बच्चों के साथ में और सब थोड़ा सा उन्होंने मुझे थोड़े दिन, मैंने बताया ना कि ऐसा मोटिवेट किया कि फिर स्कूल जाने लगी, तो वहां का एटमोसफियर और सब चीजें फिर मुझे अच्छी लगने लगी। और उनका एक स्कूल जो है गाँव में है, तो वहाँ पे बोर्डिंग वगैरह सब है, तो गाँव में है, तो पूरा एक लाइवली एटमोसफियर, पूरा फ्रेश एयर और सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। तो जैसे ही मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो उन्होंने मुझे एक प्री स्कूल ओपन करवाया। नाउ यू डू इट, यू हैव टू डू समथिंग ना, तो कुछ करना है तो आप ये करो। तो फिर एक प्री स्कूल ओपन किया। अभी आई एम वर्किंग विद, मतलब मैं प्री स्कूल देखती हूँ अभी, तो उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं। तो फिर एकदम वो वाली चीज
चेंज हुई मेरी 2-3 साल 4 साल उसमें करते करते। फिर आफ्टर दैट मुझे लीवर एक्सेस हुआ, वो भी बहुत सीवियर उसमें था, मतलब वो भी तब भी मैं 16 डेज हॉस्पिटलाइज थी, और तब भी काफी टाइम और डिस्टर्ब हुआ मेरा। तो ऐसे करके कुछ ना कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज काफी रहे, और फिर उसके बाद में ये ब्रेस्ट कैंसर हुआ, इन बिटवीन लंग्स में भी प्रॉब्लम हुई थी। तो ऐसे कुछ कुछ ये चीजें रही जिसकी वजह से मेरा प्रोफेशन भी थोड़ा चेंज हो गया। तो आई लेफ्ट दैट एंड अभी तो आई एम वर्किंग एज अ प्रिंसिपल इन प्री स्कूल। Okay. Wow. I think so. A lot of things happened to you, and every time it was a blessing, your own inner strength that brought you out from the situation. So, I mean, आप जितने आराम से अपनी जर्नी बता रहे हो, I'm sure उतने आराम से वो नहीं हुई है. So, but it's just your way of looking at life, and as you rightly said, it's the perception. And the perception towards life has also changed. That life has given you all the obstacles that it could, that now you are like इससे बुरा और क्या हो सकता है. If I overcome that, then I can overcome anything. Yes, yes. And it's very true कि अब जो वो डर था ना मन में, वो सब निकल गया कि अब मतलब अब इसके ऊपर कुछ नहीं है, ये इतना है तो अब सब झेल लेंगे. Right. Yeah. And like every crisis in our life teaches us a lesson. So आपके लिए इतनी सारी जो crisis आई है, आपको क्या lesson दिया है उसने? वैसे तो मैं पहले भी जैसे नेचर होता है तो बहुत लाइवली, मतलब खूब मस्ती मजा ऐसे करके ही रहती थी. वैसे तो मैं पहले भी वैसे ही रहती थी, पर जो बीच का थोड़ा सा फेज आया था तो उसमें जो लगा था कि नहीं, तो उसके बाद से अब लेसन यही है कि बी पॉजिटिव ऑलवेज एंड मेक अदर्स ऑल्सो, मेक योर सराउंडिंग्स पॉजिटिव ना, मतलब वहां नेगेटिव बात करना ही नहीं है, बी पॉजिटिव. वो एक है, प्लस एक रोल ऑफ दिस थिंग एक्सरसाइज, और मतलब डेली यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज. वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज लगी कि ये होना चाहिए. It should be in any form, मतलब whatever you like, whether it is walking, dance, aerobics, yoga, whatever you want. But 45 minutes, so you have to be like regular for this exercise. Plus diet and everything वो तो है. So positivity बहुत important. Lesson तो ये मिला है कि be positive always. और मैं आपको डायग्नोसिस के टाइम भी मैं कभी भी नेगेटिव नहीं हुई थी. सिर्फ कीमो की वजह से मुझे जो हुआ, अदरवाइज उस टाइम पे भी मुझे बिल्कुल नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं आई. और उस समय तो देखिए मेरी 2 डॉटर्स हैं. जब मेरा डायग्नोज हुआ था तो मेरी डॉटर का एडमिशन हुआ था निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में. 17th की हमारे टिकट थी, हम लोग सब जा रहे थे उसको छोड़ने, और 13th को मेरा ये डायग्नोज हुआ. तो मैं तो कहाँ जा रही थी और मैं कहाँ पहुंच गई. तो मैं दिल्ली गई सर्जरी के लिए. तो उसका फर्स्ट टाइम था, वहां जाके सेटल करना था, सब करना था. पर मैं पूरे 1 साल बाद गई उसके पास. पूरे 1 ईयर के बाद में गई उसके पास. सो वो भी एक कहीं ना कहीं वो था, लेकिन बहुत शी इज वेरी मैच्योर. उसने पूरा मैनेज किया उसकी, मतलब मैंने बताया फिर घूम फिर के सारा वो फैमिली वाला आता है कि मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, शी वाज इन हैदराबाद. तो शी केम कि आप वहां आराम से जाओ, इसको मैं लेके जाऊंगी. शी केम, उसकी छोटी बच्ची को, 4 साल की बच्ची को वो छोड़ के आई, और मेरी बेटी को वो लेके अहमदाबाद थी. एंड शी स्टेड देयर फॉर 4 days. उसको पूरा सेटल करके शी केम बैक. तो अभी शी इज इन यूएस. शी हैज डन मास्टर्स. अब इसका मास्टर्स हो गया है. Yeah, wonderful. And being a doctor, when you जब आपको डायग्नोज हुआ था, तो आपने बताया कि आपको सिम्टम्स थे जो दिख गए थे ना. एज ए डॉक्टर आपको पता था कि सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए. सो व्हाट विल बी योर मैसेज अबाउट दैट? बिकॉज हम लोग यूजुअली लोगों को नहीं पता होता है कि पेन भी नहीं है और छोटा सा लंप है, वो ओवर द टाइम अपने आप ठीक हो जाता है कई बार. सो व्हाट विल बी योर एडवाइस फॉर दैट? वो नेग्लेक्ट नहीं करना है. जैसे ही आपको क्या होता है कि जब when you are having your periods, so before that also you feel some tenderness in your breast. That is very much normal.
सो उस वजह से क्या होता है कि लोग मतलब महिलाएं क्या करती हैं कि उनको लगता है अभी पीरियड आने वाला है इसलिए, जैसे थोड़ा बहुत सुना हुआ रहता है आधा अधूरा, तो उनको लगता है हाँ पीरियड आएगा इसलिए, पर वो कभी भी इसको कनेक्ट नहीं करते हैं। जैसे अब मुझे जब हुआ था तो फिर मैंने काउंट किया कि मैंने बोला अभी तो मेरा टाइम ऐसा है, अभी तो 8 डेज ही हुए पीरियड के, तो अभी कैसे हो सकता है, क्योंकि वो 14th डे ओव्यूलेशन होने के बाद में ऐसा होता है। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है, मतलब पूरा नॉलेज होना जरूरी है, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और थोड़ा सा भी हो तो आप एज यू आर नॉन मेडिक हो तो फिर आप वो कैलकुलेट कुछ भी मत करो। यदि आपको थोड़ा सा भी ब्रेस्ट में पेन है या थोड़ा सा भी आपको लगता है तो दिखाओ, मतलब। और इसके लिए एक एसबी अपन बोलते हैं, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, सबसे मस्ट होता है वो, कि व्हेन यू टेक बाथ तो आपको ब्रेस्ट जरूर एग्जामिन डेली ड्यूरिंग टेकिंग बाथ एग्जाम होता है। कहीं आप गूगल पे भी देखेंगे तो पूरा मिल जाएगा। हाथ में 1 मिनट का काम है, दोनों ब्रेस्ट को जरूर चेक करें। और थोड़ा सा भी आपको यदि है हो, क्योंकि पेन भी होता नहीं है, तो थोड़ा भी लम फील हो तो यू गो टू डॉक्टर। और आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज मैं वैसे भी एडवाइस करूंगी, आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज हर 2 साल में एक बार मैमोग्राफी होनी चाहिए रेगुलरली, मतलब कोई सिम्टम हो चाहे नहीं हो। आफ्टर 40 ईयर्स की एज में हर 2 साल में एक मैमोग्राफी, और हर साल एक पैप्समेयर का टेस्ट जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे इंडिया में बहुत सबसे नंबर 1 पे है सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। तो ये हमें 2 चीजें 40+ एज में रेगुलरली, मतलब। और उसके लिए सबसे अच्छा है याद रखने के लिए कि जब आपका बर्थडे हो, योर डेट ऑफ बर्थ जो है उसके एक दिन पहले एक दिन बाद में आप उसको रखें, ताकि उससे आपको याद रहेगा। Right. Okay. Got it. And many times people try to avoid cancer treatment. Reason बहुत कुछ होता है. Reason ये होता है कि कैंसर दोबारा आ कि गया मैंने है. Yeah, sorry. तो उसको याद रखने का तरीका है कि बर्थडे के टाइम पे आप उसको करें, अपना चेक करना है 40+ एज में, एक पैप्समेयर और मैमोग्राफी ये होना चाहिए, हर महिला का होना चाहिए। मतलब पार्लर ना जाए, साड़ी ना खरीदे, पर ये जरूर करें। सही है. Dr. Kiran, also many times, what we see, some, especially tier 2, tier 3 से, people don't want to continue the treatment or don't want to start the treatment क्योंकि डर लगता है. और the reason could be that I don't want to be liability on the family. मुझे अपने परिवार पे बोझ नहीं बनना है, 10 लाख रुपए भी नहीं करने हैं, क्योंकि या फिर उनको कैंसर दोबारा आ गया है तो भरोसा उठ चुका है. So what will be your advice to them? एक तो शेयरिंग बहुत जरूरी है। जैसे क्या होता है हम सब चाहते हैं, जैसे पता नहीं कुछ हमने खुद ही कुछ गिल्ट कर दिया है, कुछ कर दिया है, तो यहाँ पे अपने वो अवेयरनेस भी नहीं है, मतलब कुछ किसी से शेयर नहीं करना, कई दिनों तक बताना नहीं, तो ये सब चीजें नहीं होती है। मतलब आप सोसाइटी में सबसे पहले घर में कुछ भी प्रॉब्लम है और सोसाइटी में जरूर शेयर करें कि भाई ऐसा है, तो उससे आपको देखिए जैसे हम छुपाते हैं तो हमें फिर ये इतनी चीजें पता नहीं लगती हैं, नॉलेज भी कम रहता है। फिर हम शेयर करेंगे तो आपकी तकलीफ भी शेयर होती है ना। आप सिर्फ अकेले फिर पेन बेयर नहीं करते हैं, आपके साथ कई लोग खड़े हो जाते हैं। और जिस तरह से मैंने बताया हम सोसाइटी में जुड़ते हैं, लोगों से मिलते हैं, जब हम दूसरों का देखते हैं तो फिर हमें रहता है कि हाँ इतनी तकलीफ इनको भी है और उसके बाद भी ये सब कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। ये देख Right. के हमें फिर पॉजिटिविटी आती है। तो Right. शेयर करना बहुत जरूरी है, अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। Got it. और और उससे अभी आप और इस में लोगों से जुड़ना भी बहुत जरूरी है। एंड अभी आपका ट्रीटमेंट खत्म हो गया है, सो व्हाट आर द फॉलो अप टेस्ट एंड स्कैन्स दैट यू आर डूइंग टू इंश्योर कि कैंसर वापस नहीं आए, और आता है तो हम जल्दी कैच कर लें उसको. हाँ, सबसे स्टार्टिंग में मेरा हर 3 महीने में होता था, हर 3 मंथ्स में चेकअप होता था। फिर 2 साल के बाद में वो 6 मंथ्स में हो गया, और अब डॉक्टर ने 1 ईयर में एक बार बोला है चेक करने। तो एक्सरे होता है, ब्लड टेस्ट होते हैं और सोनोग्राफी होती है, ये सारे टेस्ट होते हैं। और फिर यदि कुछ और जरूरत पड़ती है तो साथ में होता है। एक बेसिकली हर 6 महीने में मैं चेक करता हूँ, एक्सरे भी होता है, सोनोग्राफी एंड ब्लड टेस्ट, ये रेगुलरली चेक करता हूँ। ओके, ठीक है. काफी हेल्पफुल है ये. एंड कई बार लोगों को क्वेश्चन आता है कि टेस्ट का
एवरेज कॉस्ट कितना होता है, तो कई बार उसके लिए भी नहीं करवाते हैं। तो आप बताएंगे जैसे मेमोग्राम और पेप्समेयर का एवरेज प्राइस कितना होता है, जो ताकि एक आइडिया मिल जाए सबको। मैमोग्राम का है 2000 से 2500 के बीच में हो जाता है, और पेप्समेयर इज ओनली 2 to 300 रुपीज, दैट्स ऑल। 300 रुपीज में आपका पेप्समेयर हो जाता है, एंड इट टेक्स ओनली 5 minutes। Okay. और painless, that is painless, Right. They have to take the smear only. Right. And Dr. Kiran, जैसे when you were going through the treatment, either during the treatment or after the treatment, what are the lifestyle changes that you made that helped you in recovery? जैसे आपने बताया एक्सरसाइज का हो गया, या फिर कुछ माइंडफुलनेस एक्टिविटीज, what are things you did that helped you? मुझे तो थोड़ा म्यूजिक से भी बहुत रिलीफ मिला, क्योंकि क्या होता था जब कीमो होती थी तो दिन भर सोने में आता था, मतलब पूरे डे टाइम में आप यू फील लाइक स्लीपी स्लीपी, कुछ खाना नहीं है, सिर्फ सोना, ये सब होता था। तो नेचुरली फिर रात को नींद नहीं आती थी, तो वो पूरा स्केड्यूल पूरा ही खराब हो चुका था। तो म्यूजिक से भी बहुत मुझे आराम मिला। आई यूज्ड टू प्ले हनुमान चालीसा, और कुछ थोड़े से गजल सॉन्ग्स ये लगाती थी, भजन ज्यादा लगाती थी मैं, हनुमान चालीसा वो लगाती थी, तो मुझे बहुत रिलीफ मिलता था, मतलब बहुत ही रिलीफ मिलता था, क्योंकि सब सो जाते थे, और जैसे नेचुरली सब थके हुए हैं सब है, तो सब लोग अपने वर्क प्लेस से आए हैं तो सब सो गए हैं, पर मैं अकेली होती थी कि मैं पूरी जगती रहती थी और देखती रहती थी कि 3 बज गई 4 बज गई, नींद ही नहीं आती थी। तो जब मैंने एक बार मुझे ऐसा लगा कि नहीं, तो फिर मैंने जब वो लगाना शुरू किया तो इट हेल्प मी अ लॉट। तो म्यूजिक से भी मुझे बहुत आराम मिला। ओके, और कुछ आपने किया एक्सरसाइज या डाइटरी चेंजेस, एनीथिंग एल्स दैट यू डिड? एक्सरसाइज तो आई यूज्ड टू पुली वुली पूरा सब करती थी, एक्सरसाइज वगैरह पूरी करती थी मैं। मेरी फिजियोथेरेपिस्ट आती थी, एक्सरसाइज करती थी, उसके अलावा भी मैंने एक्सरसाइज, जब फिजियोथेरेपिस्ट आना बंद हुई तो भी मैंने एक्सरसाइज कंटिन्यू की। हाँ, मसाज ऑल्सो हेल्प मी, मतलब उससे भी मुझे बहुत एनर्जी मिली, तो मैंने मसाज भी मैं करवाती थी। Okay, thank you. Definitely, I think a lot of families, good family support and inspiration, physiotherapy treatment आपने timely complete किया, self diagnosis जो आपने किया, I think all of these जो आपने चीजें की वो कई बार हम लोगों को काफी लेट पता चलती है कि ये चीजें इस तरीके से होनी चाहिए, और इसके लिए कई बार वो काफी लेट भी हो जाता है। एक्चुअली क्या है, ये जैसे मैंने बताया, ब्रेस्ट 3 दिन सिर्फ 3 दिन हुआ, चौथे दिन आई वेंट टू डॉक्टर। तो लोग करते नहीं है, मतलब फीमेल्स, मतलब सबके लिए करेंगे पर खुद के लिए नहीं करती हैं, तो वेरी वो बहुत इंपॉर्टेंट, या हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, वो निग्लेक्ट बहुत करती हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। मतलब आपको जैसे ही लगे कि मुझे थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ है, तो यू गो एंड मीट योर डॉक्टर, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है वो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है। वी नेवर नो, अगर 100,000 लोगों ने दिखवा दिया, उसमें से एक भी निकला तो हम समझ रहे हैं कि हमने एक को तो बचाया, 999 लेडीज ने इस एक को बचाया ना, अगर हम ऐसा करते हैं तो। राइट, तो मतलब अवेयरनेस शुड बी देयर। थैंक यू फॉर ये शेयरिंग। नॉर्मल से थोड़ा सा भी अलग है तो यू गो एंड चेक। Yeah, thank you so much, Dr. Kiran, for sharing this. We would love to hear from others, starting from Anuradha ji. Hello. Hello. Hi, Dimple. Hi, Kiran. Are you able to hear me? Yes. Yes, didi. आज थोड़ा थ्रोट खराब है। किरण के बारे में क्या कहूँ, शी इज सो बबली ऑलवेज ना, कुछ भी चीज आप इसको दे दो, ये पूरी जिम्मेदारी के साथ इतने उत्साह के साथ करेगी। और कह रही थी पुश करती हूँ, तो ये मेरे साथ हर एक को पुश करने में भी लगी होती है। जब हमारी डांस प्रैक्टिस होती है तो शी इज द वन, सबको इतनी लाइफ देती है वो कि बता नहीं सकती हूँ मैं इस तरीके से। और हमेशा किसी भी, मतलब अभी इसने भी बहुत अच्छे से हम लोगों को वॉलंटियर टीम ज्वाइन करने के बाद लिम्फेडिमा का पूरा अटेंड करा है, मतलब मसाज बैंडेजिंग एक्सरसाइज सीखी है। और अब ये भी हमारे यहाँ जब लिम्फाप्रेस मशीन के पेशेंट्स आते हैं तो अटेंड करने जाती है। तो शी इज ऑल्सो थिंकिंग कि कुछ रिटर्न टू द सोसाइटी इस तरीके की वाली
जिसके मन में है, और ये बहुत अच्छे से हेल्प कर रही है हम सब लोगों को। और आपने देखा ही होगा, इसकी बात सुन के ही आप समझ पा रहे हैं कि कितनी लाइवली है। एक छोटा सा वाक्य मैं शेयर करना चाहूंगी। बच्चे जो होते हैं ना, बहुत शैतान होते हैं, तो कभी कभी अपनी माँ के लिए जैसे कोई डांट दे या कुछ कर दे तो उसके लिए बहुत खुश होते हैं। तो एक बार जो हम लोगों का ब्रेस्टकॉन में प्रेजेंटेशन था, तो हाफ एन आवर का संगीनी की तरफ से एक स्टेज पे प्रेजेंटेशन था। उसमें हम लोगों ने प्ले किया था, डांस भी किए थे। उसमें हमारा प्री रिकॉर्डेड ऑडियो चल रहा था और लिप मूवमेंट्स देख के हमको डायलॉग्स डिलीवर करने थे। तो हम, किरण का हमेशा होता है हमारा कुछ इवेंट है तो ये जरूर एक न एक कुछ बीमार या कुछ गिरना या कुछ जरूर इसके साथ होता है, या तो चलते चलते पाँव मुड़ जाएगा, कुछ हो जाएगा, गिर जाएगा, कुछ भी। बट फिर भी उसके बाद शी इज सच अ ग्रेट फाइटर कि उठ के खड़ी हो जाती है और उस मोमेंट को पूरा कैप्चर कर दिया। जब हमारा प्रेजेंटेशन था वहाँ ब्रेस्टकॉन में, तो लास्ट डे इसकी डॉटर, जब हमारा प्रेजेंटेशन हुआ तो इसकी डॉटर से कहा, मम्मा अपने डायलॉग्स कब याद करे, आपको तो याद ही नहीं थे डायलॉग। तो किरण बोलती है, मेरे ऊपर भी एक टीचर है ना, उन्होंने मुझे डायलॉग याद करवाए थे जो मेरे लिए भूल रही थी। तो उसकी बच्चे मतलब, अच्छा आंटी वी आर सो हैप्पी कि हमारी मम्मा को भी डांटने के लिए कोई है। इस तरीके से। तो मैं यही बोलती हूँ किरण के लिए कि शी इज सच अ ग्रेट सोल, ब्यूटीफुल सोल, ऑलवेज हेल्पिंग, सबके लिए बहुत अच्छे से मदद करती है और बहुत ही प्यारी है। किसी भी क्षण हमको जरूरत है इसकी तो शी इज देयर टू हेल्प अस। दैट्स ऑल। Thank you. Yeah, I could sense it. उनको देख के लग रहा है कि wow, मतलब you know she is very open from Yes. her heart कि always there. Thank you. Anjali, I would love to hear from you. Yeah, there are many dancers today I see on this platform. It feels like female dancers are going to give tough competition to male dancers here. Yeah, Anjali. Hi. Yeah, hi Kiran ji. Hello, hello. Hi, you're so bubbly. I can see positive. Very inspired by your stories and all. And be like this always. My best wishes to you. Love your Sure. Thank you so much. love for your future. Yeah. Thank you. And Anjali ji has also gone through journey, and as she says कि उनको भी डांस थेरेपी और उनका खुद का जो अंदर का एक वो डांसर है काफी ज्यादा हेल्प किया उससे उनकी रिकवरी में. So yeah, wonderful. Thank you. Yeah, Mehul, would you like to share? Hi, Dr. Kiran. Nice to listen to your story and very inspiring. And I'm glad you are with Anuradha ji. She's also an inspiration and a cancer teacher. Like, Yes. yeah, True. she is. It's always nice to be with people like her, especially when you have to, when it's your second life and it's you get to see a whole new perspective of the world around you. Yeah, congratulations again on beating it, and I wish you the best. Thank you. Thank you. Yeah, Thank you so much. Yeah, and we'll all just take a minute of silence here to in the memories of Mehul's father. We just lost him a few weeks ago. So let's take a minute of silence here, and wherever he is, may he lives in peace and comfort, and his memories, his spirit, joyful spirit will always be with us and will forever cherish his memories. So thank you. We'll just take a minute of silence here. Thank you. Thank you. Pankaj ji, would you like to share? So good to see you after a long time. Okay, can you hear me? Yeah. Okay, first of all, thank you, Dr. Kiran, for such an inspiring story. I mean, people are saying that you're bubbly, and then it's really a pleasure to listen to your story. But also, you know, getting so many, I think, learnings out of it. And I mean, for me, I'll just take two things which are very important and just like to, you know, reiterate over here. First is when you said, you know, do not delay. That is very important, and specifically in case of, you know, women in our society.
You rightly pointed out कि क्या होता है कि हम कई बार उसको बहुत seriously नहीं लेते हैं और हम दूसरों की चिंता ज्यादा करते हैं, तो I think that's important. And then secondly is about the regular follow-ups. So I am also a person who is actually fighting it, and regular follow-ups have been really very useful for me. And but thank you very much again for your story, and then it's good to be back in Healing Circles, Dimple, again after 2 months. And just wanted to share a good news that I was actually part of a international course on citywide inclusive sanitation. So and I just completed that course last week, and out of 110 people, I think I was in first 7 or 8 people, the meritorious students of the course, really identified specifically for my performance in group works and quizzes and everything. So such a great pleasure to be part of that course. But also, knowing back that, the strength is still there, where you can actually, fight it out in the society and then, just enjoy those small pleasures. So that's important for us. I mean, that's what I just wanted to say. So thank you very much. And thank you very much, Dimple, for connecting again. And now I'll be continuous in the Healing Circle. Thank you. Thank you so much, Pankaj ji. And I just want everyone to, like all the patients, to join and see such a wonderful, inspiring stories, because even, many of you are going through the treatment currently, but then that's just a part of it. There is much more which is happening in your lives, and that is much more beautiful, and that you all want to share. So rather than focusing only on the treatment and thinking a lot about it, we should really focus on the other aspects of life. And thank you so much, Pankaj ji, for sharing this. Congratulations. Very happy to hear this. Congratulations, Pankaj ji. Thank you very much. I don't know whether I'll be able to share that slide. Just one second. I'll just allow the screen sharing. Just a minute. Give me just 1 second, please. Now you should be able to share it. Okay, you see this share screen option? Just 1 minute. I'm on mobile phone. I don't know whether I'll be share it or not. Then a bit challenging. So what I'll do, I'll post it into the group. Yeah. This is just a screenshot from the course itself, where my picture is there, and amongst the meritorious students. So just wanted to share that. Can you WhatsApp me right away so that I can share it probably? Just 1 minute. Yeah. I'll try to do that. Sure. Meanwhile, we'll request Neha. Hi Dimple दी. Hi Kiran दी. Hello. मैं किरण दीदी से संगिनी के थ्रू मिली थी, अनुराधा आंटी के से मिली थी। जब फर्स्ट टाइम हम मिले थे, तो मैंने जैसे पहले बताया हुआ है कि मेरा हरसेप्टिन का मैं कीमो लेके और इन लोगों सबसे मिली थी, और इसमें किरण दीदी भी थे, और सबने ऐसे क्लैपिंग किया था मेरे लिए। और मैं जब तक किसी को ऐसे पर्सनली किसी को जानती ही नहीं थी, बट जब मुझे धीरे धीरे पता चला गया, और उसके बाद मुझे, जैसे अनुराधा आंटी कहते हैं कि ये ग्रुप की सबसे बबली हैं, तो मैं तो इनको हमेशा ग्रुप में सबसे ब्यूटीफुल भी कहूंगी कि इतनी सुंदर मैंने किसी को नहीं देखा, और इतना कॉन्फिडेंस मैंने किसी में नहीं देखा। मतलब ऐसा लगा ही नहीं था जब इस ग्रुप में मिली थी मैं। मुझे एक मीटिंग याद है, शायद किरण दीदी को याद है कि नहीं, मैं इनसे एक सेलिब्रेशन होटल में मिली थी, और इन्होंने मुझे एकदम पहचाना था, मैं पहचानी भी नहीं थी। मैं पहचानी भी नहीं थी, और मुझे ऐसा लगा था कि इतना प्रिटी, इतना ब्यूटीफुल कोई कैंसर के बाद हो सकता है क्या? मतलब मेरा ऐसा थॉट प्रोसेस था, क्योंकि मेरा 1 साल ही हुआ था उस टाइम पे। तो मुझे इतनी स्टोरी का दीदी का ऐसा पता नहीं था, और बहुत अच्छा लगा किरण दीदी आपसे बात करके और सुन के। और हमारा कोविड टाइम में तो इतना ज्यादा कनेक्शन हो गया था कि हम लोग लूडो खेलते थे, तो एक दूसरे को इतना छोटा पीटी, और तब मुझे ना नेहू बुलाते, तो एक ऐसी फीलिंग आती थी कि यार ये कैंसर ही बैठा था कि इतने लोग अपने पहले कहाँ थे, पहले कोई नहीं मिला। और आज कैंसर को हमेशा, इसलिए मैं थैंक यू बोलती हूँ कि मुझे इतनी पॉजिटिविटी देने के लिए ये लोग सब हैं। कभी माइंड मतलब एक टेंशन आता है, तो सबसे पहले हमारा संगिनी ग्रुप है जो 24/7 अवेलेबल है एनी टाइम सभी के लिए, तो उसके लिए भी सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगी मैं।
और थैंक यू किरण दी. Love you. Love you, love you. Thank you so much, Neha. And this is the picture that Pankaj wanted to show. Yeah, here is washed Wow. best UNICEF. Wow, thank you for sharing your achievement with all of us. Yeah, really a proud moment for all of us as well. Thank you. Thank you Wow. very much. Thanks a lot. Congratulations again, Pankaj ji. Thank you very much, Dr. Kiran. Thanks a lot. Yeah. So we would now hear from Sushil ji. Good evening to all. Good evening, बस Sushil. मतलब ये तो मैंने बताया ना वीकली डोज है, मेरा वीकली डोज हो गया है फॉर द नेक्स्ट वीक. रिचार्ज वाउचर है जैसे है ना कि हीलिंग सर्कल इज अ रिचार्ज वाउचर फॉर 7 days. हाँ, ध्यान रखिए उसको, इससे ज्यादा का वेटिंग टाइम नहीं हुए इसमें. Right. Thank you. And God bless all of us. Thank you. Please so much. carry on. Huh? I am enjoying the every word of talk. Thank you, Sushil ji. Thank you, Rajendra ji. Yeah, Dr. Kiran, I think, look gorgeous and more lively. I have observed one thing, that those who pass through the cancers, having a traumatic experience, are becoming more and more lively. I think that's a very good sign. They shine also, they smile also, and one wonderful thing, what happens to their life, they become very much sympathetic and empathetic to the society and needs of other people. So these are the beautiful changes they have. And one more observation, probably I have recently met Mehul. When you meet your companion who have passed through, Simita said, your feeling is tremendously great. Recently I met Divya as well as Mehul, and you feel so wonderful and so happy that at least even like this meet also, when we talk and meet over this every workshop hour, then you feel very happy. So I think this is all very good and leads to a very good happiness, satisfaction. But I must compliment Dr. Kiran, because like what others said, she looks really gorgeous and she really looks beautiful and really more lively. Thank you so much. It means a lot. Thank you. I think after going through this journey, it's the inner beauty that comes out on the face, and it's more brighter and more sharper also. So, Yes. Now even caregiver also have become more brighter, like you. Thank you, Rajendra. Yeah. Hi, Nihar. Hi. Hi, would you like to share? So, I'm so much touched with after knowing Kiranji's story, and someday I would like to photograph her. Definitely. Being a photographer, being a portrait photographer, I have been photographing cancer survivors on and off. Of course, not a long. It's a long-term project which I've been doing, which I'm going to continue for my rest of my life. So someday I'll shoot Dr. Kiran with my camera. Yeah. Thank you so much. It's a promise. It's a gift from me. Wow. Thank you so much. Thank you. Okay. Thank you. Thank you so much. I think that's the beauty of it. And Nihar was a caregiver to his mother. She's doing well now by God's grace and all his efforts. And he's also a photographer. So been making stories, talking to a lot of cancer survivors, caregivers, and writing beautifully on that, capturing their entire journey, which always inspire and motivate others. So great. It's always a pleasure to host the event. And like, Sushil ji rightly said, it's a weekly dose that we all get, dose of motivation, dose of connectedness with each one of you. And before we close the circle, I would like to ask Dr. Kiran, that what is that one message that you want to share with everyone? Am I audible? Yeah. Now you're audible. Yes. Yeah. Just want to say, be happy, be positive, and be lively. जो
है at present उसको enjoy करो. Very important and because in fact हमने इतने सारे circles किए और I think from all these previous circles what's coming out of it naturally is the emotional wellness, the mental strength, the family love and support, community love and support, the guidance, and the journey becomes very beautiful. And I think that's the message that I carry for today. Even today morning session also somebody was sharing about this a lot. क्योंकि बाकी सब ups and downs आते रहेंगे, but journey में जो ये चीजें constant रहती है, then it becomes more smooth and more comfortable as well. So I think all the patients who are going through this journey right now, having that positivity, that joyfulness, that strength, willpower is very, very important. Something that we ignore, something that we don't focus on because we more focus on the treatment and on the diet is what I've seen primarily. कि बस हमेशा 90% of the queries are around what to eat and nutraceuticals, supplements, all of that. But then can we really ask this question that, okay, what are you doing for mental wellness? How are you keeping your how are you doing emotional detox? We always talk about physical detox. We speak, okay, kya natural therapies karni hai, but then we should really talk more. In fact, in the communities also, when you also talk to other patients and caregivers, should really ask this question and also guide them, okay, can we really focus on the what are you doing for emotional well-being and how are you taking care of yourself? How are you doing the self-care? Is there anything that I can do, or maybe I can just listen to you? That helps a lot. So yeah, and that's the thing that I feel. So thank you so much, everyone, for joining in today's Healing Circles talk, and looking forward to many more beautiful spaces like this. Thanks a lot once again. Yeah, thank you, Dr. Kiran. Yeah, see you all. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you for your kind support. Thank you very much. Thank you, Anandini. Thank you, Neha. Thank you, everyone. Thank you. Bye. Bye.